Good morning, students. This is Monish Gehnulia. Today we are going to start Book 2 Politics in India Since Independence, Class 12th. And we are going to begin with Chapter 1, that is Challenges of Nation Building. As you all know, syllabus has been changed. So in first chapter we have name of the chapter is Challenges of Nation Building. So topics are Nation and Nation Building, Sardar Vallabhbhai Patel and Integration of States, Legacy of Partition, Challenge of Refugees, Resettlement, Kashmir Issue, Nehru's Approach to Nation. In that topics are building political conflicts over language and linguistic organization of states. So this is the whole one chapter in which today we are going to do nation and nation building, only one topic. Okay, so this will be our first topic. Okay, so as you all know, on 1947, 15th of August 1947, India got independence. So when India got independence, India got partition between India and Pakistan, and it resulted in a large scale of violence and displacement of people, and there was a big challenge for India whether India will be a secular country or not, because India wanted to be a secular country. तो इंडिया सेकुलर कंट्री बन पाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के सामने आ रहा था. केवल एक यही चैलेंज नहीं थे, देयर वर सो मैनी चैलेंजेस. एंड फर्स्ट स्पीच जो 14 एंड 15 अगस्त को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू he has given, as you all know, he started the speech with Tryst with Destiny. T-R-Y-S-T. Tryst means love with destiny. So he was addressing a special session of the Constituent Assembly. Okay, so immediately after independence there were so many challenges we were facing. Example, like हम जो इंडियंस हैं वो एक यूनाइट हो करके रह पाएंगे, और हम जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. उसके साथ साथ जो हमारे साथ नेशन को शेप करने की बात है, उसको यूनाइट करने की बात है, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की बात है, उसके अलावा जो हमारी पॉलिसीज़ है उसको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. नॉट ओनली effective implementation, we will be a far better than developing country. क्या हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे हमारे देश का? उसके अलावा we were having so many challenges, whether we are able to eradication of poverty and unemployment. क्या हम ऐसा कर पाएंगे? इस तरह से बहुत सारी challenges हमारे सामने थे, right? So we were facing so many challenges. Not only these challenges, we were facing communal challenges also. दो हब बन गए थे हमारे देश में जहाँ पे कम्युनल वायलेंस हो रहे थे, कम्युनल राइट्स हो रहे थे. एग्जाम्पल, फर्स्ट वॉज अमृतसर एंड सेकेंड वन वॉज कोलकाता. क्यों हुआ ऐसा? ये सब ऐसा क्या हुआ? ये सब इस वजह से हो रहा था because it began with two nation theory. देश आज़ाद होने से पहले
two leaders. Our two leaders. One side was Pandit Jawaharlal Nehru and other side was, what was the name? Can you remember the name? First Prime Minister of Pakistan. Who is that? Yes, he was Muhammad Ali Jinnah. So these two leaders were contradictorily, they were facing so many challenges. एक बोल रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा इंडिया का, दूसरा बोल रहा था मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा. इस तरह से हम चैलेंजेस फेस कर रहे थे कि हम, एक बोल रहा मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, दूसरा भी यही रिपीट कर रहा था. सो इस जिद ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर बनने की होड़ ने टू नेशन थ्योरी ला के रख दिया. इवन महात्मा गांधी ऑल्सो एक्सप्लेन्ड आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि मोहम्मद अली जिन्ना इज सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज एंड ही विल डाई सून. देन ऑल्सो on Indian side, no one able to compromise the situation. So finally टू नेशन थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने की बारी आई एंड टू नेशन थ्योरी इम्प्लीमेंट हुआ और इंडिया और पाकिस्तान दो भागों में डिवाइड हो गया. और इंडिया और पाकिस्तान दो भागों में डिवाइड होने से कम्युनल राइट क्रिएट हो गए, बहुत बड़ी समस्या आ गई और इस तरह की सिचुएशन आई, इस तरह की बुरी सिचुएशन इंडिया में हो गई. लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, इस साइड भी और उस साइड भी. बहुत बुरा सिचुएशन हो रहा था. So Pakistan was divided between East and West Pakistan. Pakistan was having East and West Pakistan, and because कम्युनल राइट्स जो हो रहे थे वो इंडिया को डिवाइड कर रहा था. हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिफ्यूजी कैंप बन गए थे, विमेन को किल किया जा रहा था, जो मुस्लिम वीमेन यहाँ थी और जो हिंदू वुमेन पाकिस्तान में रह गई थी फॉर द सेक ऑफ देयर फैमिली ऑनर. फाइनेंशियल एसेट्स डिवाइड किए जा रहे थे. बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट हिंदूज एंड मुस्लिम में चलते ही जा रहे थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो ब्रिटिशर्स के पास थे उनको कह दिया गया आप चाहे तो इंडिया में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं और आप खुद का इंडिपेंडेंट कंट्री भी बना सकते हैं. ये तीन सिचुएशन प्रिंसली स्टेट्स के सामने रखी गई. तो इन प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करने में एक लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ. क्या कोई बता सकता है? यस, ही वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल. और सरदार वल्लभ भाई पटेल, अच्छा इससे एक और कनेक्शन मैं देता हूँ. जर्मनी को यूनिफाई किसने किया? किसने जोड़ा जर्मनी को? कोई बता सकता है? अगर किसी को याद है तो राइट इन द कमेंट. किसी को थोड़ा सा भी ख्याल है कि जर्मनी को यूनिफाई करने वाला लीडर कौन था? और उसी लीडर की उपाधि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी जाती है. Who is the one? Can anyone tell? His name was Bismarck. Bismarck of India is Sardar Vallabh Bhai Patel. So we were facing so many challenges. So in that situation, our one of the leader, Sardar Vallabh Bhai Patel, he integrate whole India into one India. Like हैदराबाद सिचुएशन थी, भोपाल, त्रावणकोर, जूनागढ़, ऐसी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं जिनको हमने इंडिया में जोड़ा. हैदराबाद
जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद की बात है, इस तरह से बहुत सी सिचुएशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्होंने अपने लेवल पे ले करके सॉल्व की। ओके, सो हम ये इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स में देखेंगे और फिर लास्ट में हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स कैसे बने वो भी हम इस चैप्टर में देखें। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बेसिक एंड फर्स्ट चैप्टर, challenges for the new nation, challenges of nation building and challenges for the new nation. Okay, let us start. So we are going to line by line, एक word to word हम जाएंगे ताकि कुछ छूटे ना। So at the R, at the hour of midnight on 1947, 14th or 15th August 1947, India attained independence. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of Free India, addressed a special session. Speech that you are familiar with. This was the moment Indians had been waiting for to get freedom. ये कई सालों से जब हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया था, जिसे हम 1857 की फाइट को भी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, तब से लेकर के हम अब हमारे देश को आज़ाद कराने की फिराक में लगे हुए थे। हम कोशिश करते जा रहे थे पर हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। तो फाइनली वो दिन आ ही गया जब पूरा देश, हिंदुस्तान आज़ाद होने पे, भारत आज़ाद होने पे था। सो बट देयर वर two goals almost everyone agreed upon. One, that after India we shall run our country through democratic governments, and two, that government will run for good of all, particularly the poor and the social disadvantaged group. Now the country was independent. The time had come to realize the promise of freedom. So first challenge we were facing कि क्या हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो कर पाएंगे, बिकॉज वी वर एम टू बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और जो पुअर पीपल है, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, क्या हम उनको भी अपने साथ लेकर के चल पाएंगे? इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम, समस्याएं हमारे सामने थी। तो इन सब सिचुएशंस को रियलाइज करने का टाइम हमारे पास आ चुका था। सो दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी इजी। इंडिया वॉज बॉर्न इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। परहैप्स नो अदर कंट्री बाय देन वॉज बॉर्न इन सिचुएशन मोर डिफिकल्ट देन दैट ऑफ इंडिया इन 1947। तो इंडिया की जो सिचुएशन थी वो इंडिया के अलावा कोई कंट्री नहीं थी जिसकी इंडिया से बदतर कोई सिचुएशन रही हो। Finally, freedom came with partition of the country. The year 1947 was a year of unprecedented violence and trauma of displacement. चारों तरफ त्राही माम मचा हुआ था। सब तरफ लोग लड़ रहे थे, मर रहे थे, कट रहे थे। It was in this situation that independent India started on its journey to achieve several objectives. दोनों देश अपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगे हुए थे, और yet the turmoil that accompanied independence did not make our leaders lose sight of multiple challenges that faced the new nation. तो उस तरह की बुरी सिचुएशन में भी हमारे लीडर्स जो थे वो मल्टीपल चैलेंजेस जो हम फेस करने वाले हैं, जो वर्स्ट सिचुएशन हमारे साथ फ्यूचर में आने वाली है, वो सब ध्यान में रखे हुए थे कि हमको इन सब सिचुएशन से किस तरीके से टैकल करना है। देखो स्टूडेंट्स, ये वाली पिक्चर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग फ्रॉम
द रेड फोर्ट 15th of August 1947। क्या सुनहरा मौका था, क्या टाइम था वो। इट वॉज ऑसम, रियली ऑसम। पूरा देश जिसके लिए कई सालों से लड़ा, पूरा देश के बहुत से नौजवान लड़े, भगत सिंह जैसे लीडर, क्या लीडर थे वो। 23-24 साल की एज में लोग मज़े करते हैं, ऐश करते हैं, घूमते हैं, पार्टियां करते हैं। उस टाइम भी बहुत से लोगों ने की होगी, लेकिन भगत सिंह, उन्होंने कह दिया था जब उनके पेरेंट्स ने उनसे शादी कराने के लिए कहा, तो ही सेड अब आज़ादी ही मेरी दुल्हन है। तो आज़ादी से ही उन्होंने फाइनली शादी की, फांसी पे लटक गए। केवल भगत सिंह ही नहीं, बहुत से लीडर्स, ग्रेट लीडर्स कम एज में, भगत सिंह तो फिर भी एज उनकी बड़ी थी, जो साथ में राजगुरु थे, और सुखदेव, जो भी लीडर्स थे वो तो और भी छोटे थे उनसे। रियली हमारी आज़ादी फ्री में नहीं मिली है, लाखों लोगों की कुर्बानियाँ दी गई है, तब जा कर के हम आज चैन की सांस ले पा रहे हैं। तो हमारी आज़ादी फोकट में नहीं जानी चाहिए। हम हमारा समय अगर सही जगह लगाएंगे, हम हमारा समय अगर राइट डायरेक्शन में लगा लेंगे, तो हमें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। और दुनिया को छोड़ो, भारत को हम कहाँ लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, पर हमें अपने आप के लिए मेहनत करनी है, हमें अपने आप के लिए जीना है, हम अपने आप के लिए अपने आप को ऊपर लेके जाना है, अपने आप को टॉप लेवल पे लेके जाना है। हमें हमारे खुद के लिए वर्क करना है। सक्सेसफुल बनाना है तो खुद को बनाना है। अगर हर एक स्टूडेंट केवल इतना सोच ले कि हमें सक्सेसफुल बनाना है, केवल एक इंसान को, वो कोई और नहीं, हम खुद हैं, तो बस दैट्स इट, काम हो गया। इंडिया केवल इतना सा सोच ले, इंडिया के हर एक स्टूडेंट अपना इतना सा सोच ले, अपना परफेक्ट जो भी वर्क करे परफेक्टली करे, तो हम कुछ भी पा सकते हैं। अगर एज ए आप सन है तो अपना रोल अच्छे से बेस्ट प्ले करें। अगर आप काम कर रहे हैं तो बेस्ट से बेस्ट करें, खेल रहे हैं तो खेलने के टाइम अच्छे से बेस्ट खेलें, पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें, जो काम करें अच्छे से करें, यही मैं कहना चाहूँगा। चलते हैं आगे। सो दिस पिक्चर द एंड ऑफ 200-year-old ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रॉयल असेंट टू इंडिपेंडेंस बिल। क्या माहौल था, क्या पिक्चर्स। आप देखिएगा इसको गौर से, इमेजिन कीजिएगा। सपोज जैसे आज 5 मई 2020 है, इमेजिन करो इसमें डेट जुलाई 1947। उस इमेजिनेशन से उस टाइम के पीरियड में जाओ, देन यू कैन इमेजिन कि क्या सिचुएशन रही होगी, कैसे सब कुछ इंडिया में चल रहा होगा। सो हमारे साथ 3 बिग चैलेंजेस थे। कौन कौन से चैलेंजेस थे देखेंगे, पढ़ेंगे हम। द फर्स्ट एंड इमीडिएट चैलेंज वॉज टू शार्प ए नेशन दैट वॉज यूनाइटेड yet to accommodative of the diversity in our society. India was a land of continental size and diversity. Its people spoke different languages. Its people spoke different languages and followed different culture and religions. At that time, it was widely believed that country full of such kinds of diversity could not remain together for long. So, इंडिया का साइज बहुत बड़ा था, इंडिया में डाइवर्सिटी थी, हर तरह के रिलीजन के लोग थे, हर तरह के कल्चर के लोग थे, हर तरह के पहनावे के लोग थे, डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सन थे, सब कुछ डिफरेंट था। तो लोग, पूरी दुनिया एक यह मान रही थी, जब पूरा इंडिया अलग अलग कल्चर से भरा हुआ है तो इंडिया कैन नॉट सस्टेन, ज़्यादा लंबे टाइम तक इंडिया रह नहीं पाएगा, इंडिया डिवाइड हो जाएगा, इंडिया बढ़ जाएगा। लेकिन
फाइनली इंडिया चला रहा, इंडिया सरवाइव किया और लोगों के जो थॉट थे, परसेप्शन थे, उनको ब्रेक करके इंडिया फाइनली बिकेम अ सेकुलर कंट्री। तो बहुत से क्वेश्चंस उठ रहे थे कि हमारा देश, there were serious questions about the future of India. Would India survive a unified country? Would it do so by emphasizing national unity and the cost of every other objective? Would it mean rejecting all religion and sub-nation identities? There was an urgent question. How was integration of territory of India to be achieved? तो पहला क्वेश्चन क्या निकल के आया कि इंडिया डिफरेंट स्टेट्स उसमें हैं, तो उसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए, कैसे हम इंडिया को जोड़ेंगे, कितने 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स हमारे पास हैं, कैसे इंडिया सरवाइव कर पाएगा, राइट? तो सबसे पहला चैलेंज जो था, क्या था इसमें कि हम एज एन इंडिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। सो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, और हम इंडिया का फ्यूचर क्या रहेगा। इस तरह के बहुत सारे सिचुएशंस हमारे पास थे। फर्स्ट जो चैलेंज था, अगर आप बाय पॉइंट जाएंगे तो हम शेप ऑफ ए नेशन, किस तरह से नेशन को शेप कर पाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज था कि डाइवर्सिटी अलग अलग है, सब कुछ कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, हमारे पास सब कुछ डिफरेंट है, कैसे इंडिया को शेप कर पाएंगे। तो फर्स्ट चैलेंज क्या था हमारे पास, शेप अ नेशन, how we are going to shape a nation and how we are going to unite the nation. This was the first challenge, okay? And second challenge was to establish democracy. How we are going to establish democracy in India? This was one of the biggest challenge, okay? So we were having fundamental rights extended to the right to vote to every citizen. India adopted representative democracy based on the parliamentary form of government. These features ensured that political competition would take place in a democratic framework. तो दूसरा चैलेंज हमारे पास जो निकल के आया था, it was how we are going to establish a democratic country. डेमोक्रेसी कैसे बन पाएगा। तो उसके लिए हमने क्या इंतजाम किया। We made by birth of India 1947, 15th of August 1947 से जैसे इंडिया आज़ाद हुआ तभी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चालू हो गया था। कब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के रेडी हुआ था, 26 नवंबर 1949। तो वी गेव पावर टू whom? To citizens of India, whether male or female. We gave power to each and everyone. Right to vote we gave, और राइट टू वोट के साथ साथ हमने फंडामेंटल राइट्स दिए। और इंडिया को क्या बनाया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनाया, ताकि वोट लोग करेंगे, लोग वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके दे आर गोइंग टू सेंड हिम और हर टू असेंबली इन पार्लियामेंट। सो दिस इज द सिस्टम वी मेड। इस तरह का सिस्टम हमने बनाया ताकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, बीइंग एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सरवाइव कर सके। सो डेमोक्रेटिक situation is necessary but not sufficient for establishing a democracy. The challenge was to develop a democratic practice in accordance with the constitution. Yes, definitely it's a big challenge कि democratic country होने से ही
कोई देश डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर बीइंग एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इट डज नॉट फॉलोज अ डेमोक्रेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो क्या इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए क्या डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाएगा? यस, बिकॉज इंडिया फॉलोड a constitution, the constitution, we followed our constitution जो हमने बनाया। This is the way we became a democratic country, क्योंकि हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना करके उसको फॉलो किया, इम्प्लीमेंटेशन सही से हम कर पाए। इस वजह से हमारा सेकंड चैलेंज जो था वो पूरी तरीके से सही साबित हो पाया, बिकॉज वी इम्प्लीमेंटेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको प्रैक्टिस में हम ला पाए। नाउ थर्ड चैलेंज हमारे पास क्या था? टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ एंटायर सोसाइटी एंड द ओनली ऑफ सम सेक्शंस। यस, अभी अभी आज़ाद इंडिया हुआ है, उसके बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, जो नीचे के तबके के लोग हैं, उनका हम भला कैसे कर पाएंगे? वो बहुत बड़ा चैलेंज है। पॉवर्टी से निकालना है उन लोगों को। लोअर कास्ट के पीपल वो तो पॉवर्टी में है ही, प्लस लोगों की सोच भी पॉवर्टी थी। कहने का मतलब लो थी, गरीब से भरी हुई थी लोगों की सोच भी। क्यों? क्योंकि लो क्लास वाला बंदा अमीर भी बन जाता तो लोग उसे उसकी लो कास्ट की नज़र से ही देखते कि पिछड़ी जाति का है। तो इस सिचुएशंस को निकालना था हमारे देश को। The third challenge was to ensure the development and well-being of the entire society and not only of some sections. Hence, again, the Constitution clearly laid down the principle of equality and special protection to socially disadvantaged groups and religious and cultural communities. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली कौन से प्रिंसिपल लागू किए? पहला था इक्वालिटी। गरीब से गरीब होगा, अमीर से अमीर होगा तो भी उसके पास राइट टू वोट होगा, प्लस 1 वोट 1 वैल्यू होगी। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में कोई गरीब से गरीब इंसान है तो उसके वोट की वैल्यू आधी होगी या कम होगी, और जो अमीर इंसान होगा उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी। ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे मुकेश अंबानी हो चाहे गरीब से गरीब रिक्शा चालक भी हो, दोनों की वोट की वैल्यू एक ही रहेगी, 1-1 ही रहेगी। ओके, so the constitution also set out in the directive principles of state policy. The constitution also set out in the directive principles of state policy the welfare goals that democratic politics must achieve. Yes, इंडिया के जो गोल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आता है, उसको इम्प्लीमेंट कराना वो भी एक तरह का गोल ही था। एंड रियल चैलेंज नाउ एज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। बहुत बड़ा चैलेंज था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाना है, उसके साथ के साथ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी भी करना है। ये 3 बिग चैलेंजेस हमारे पास थे। अगर एग्ज़ाम में आता है व्हाट वर द 3 बिग चैलेंजेस या घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है तो ये 3 पॉइंट हमें लिखने होंगे, समझाने होंगे। हाउ डिड इंडिपेंडेंट इंडिया रेस्पॉन्ड टू दिस चैलेंजेस? किस तरह से इंडिया ने इन चैलेंजेस को रेस्पॉन्ड किया? टू व्हाट एक्सटेंट डिड इंडिया सक्सीड इन अचीविंग द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स by the constitution? This entire book is an attempt to respond to these questions. The book tells the story of politics in India since independence so as to equip you to develop your own answers to big questions like this. Okay, leave it. So main thing we are going to understand now
इस चैप्टर में हम चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग भी देखेंगे, सेंटर स्टेज इन द ईयर्स इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या क्या सिचुएशन रही इंडिपेंडेंस के बाद, वो भी हम देखेंगे। फिर नेशनल यूनिटी एंड सिक्योरिटी, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के रह गया, जो कि हम अभी तक फेस कर रहे हैं, टेररिज्म को हम फेस कर रहे हैं। तो इस तरह की हम बहुत सारी सिचुएशन जो है उसको कैसे हम ओवरकम करेंगे वो भी हम इसमें देखेंगे, कैसे हम यूनाइट होंगे। This unity had to reflect the aspirations of people across the different regions and deal with the disparities that existed among regions and different sections of people, जो कि बहुत disparity असमानताएं थी। पहली बात हिंदू मुस्लिम का disparity, दूसरा इंडियन कास्ट सिस्टम में 4 वर्न्स थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड लास्ट में शूद्रास। तो इनमें भी डिस्पैरिटी थी। नॉट इवन इनमें डिस्पैरिटी थी, इवन अगर आप ब्राह्मण में देखोगे तो ये अभी भी बहुत सी डिस्पैरिटीज होती है, अब बहुत कम हो गई है। लेकिन एक बोलता है कि भाई मैं गॉड ब्राह्मण हूँ, जो कि टॉप मोस्ट ब्राह्मण होता है, तो अपने आप को बड़ा बताने का प्रयास हमेशा से किया गया है। अब क्षत्रिय की बात होगी तो कुछ होंगे तो राठौड़ होंगे। हम मेरे अभी स्टूडेंट जो लिसनर है उनमें भी उनको भी मालूम होगा कि कुछ राजपूत को वो राजपूत नहीं मानते हैं, जो कि लोअर होते हैं। इस तरह से ये डिस्पैरिटी सभी कास्ट में थी, और सबसे ज़्यादा जो डिस्पैरिटी थी, जो अनप्रिविलेजेस थे, वो थे शूद्रास के पास। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन थी जिसे हमें ओवरकम करना था। सो दिस यूनिटी हैड टू रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल अक्रॉस द डिफिकल्ट रीजन्स एंड टू डील विद द डिस्पैरिटीज that existed among regions and different sections of people. In the next 2 chapters we shall learn the challenge of establishing a democracy. So ये कुछ गवर्नमेंट के स्टैम्प्स उस वक्त निकली 1950 26 जनवरी। तो स्टूडेंट ये बताइए मुझे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो बना वो बन के कब रेडी हुआ, प्लस इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ? फटाफट से मुझे कमेंट करो कमेंट सेक्शन में कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब रेडी हो गया, कौन सी डेट को रेडी हो गया, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ प्लस कब इम्प्लीमेंट हुआ। ये दो डेट्स मुझे चाहिए, फटाफट से कमेंट करो, डू इट फास्ट, आई एम वेटिंग, देन आई विल टेल द आंसर। 10 सेकेंड। ओके, सो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 एंड इम्प्लीमेंटेशन 26 जनवरी 1950। अब ऐसा क्यों हुआ? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया 26 नवंबर 1949 को, फिर भी हम इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं कब? 26 जनवरी 1950। ऐसा क्यों किया गया? किसी को आंसर मालूम है तो लिखो फटाफट कमेंट सेक्शन में, एक वर्ड में आंसर लिख दो फटाफट से कि व्हाई डिड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेट चेंज्ड, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ओके, आई विल टेल, बिकॉज 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930 को वी डिक्लेयर इंडिया एज अ पूर्ण स्वराज।
हमने हमारे देश को डिक्लेयर कर दिया था कि हम 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण तरह से आज़ाद हैं, ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर कोई रोल नहीं है, हमारे ऊपर किसी का कोई राज नहीं है, हम खुद इंडिपेंडेंट हैं 26 जनवरी 1930। इन द रिमेम्बरेंस ऑफ दैट डेट 26 जनवरी 1930 को की याद के अंदर 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया, जिसे हम कहते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ओके, birth of India's freedom. So, partition displacement and rehabilitation on 14th of August. Not one but two nations came into existence. कौन सा देश बने? India and Pakistan. This was a result of partition. The division of British India into India and Pakistan में डिवाइड कर दिए गए. The drawing of the border demarcating the territory of each country marked the culmination of political developments. अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे और याद आया कि ये बताओ मुझे कि इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको क्या बोलते हैं? फटाफट से, आई विल गिव 10 सेकेंड। और इंडिया और चाइना की बॉर्डर है उसको क्या बोलते हैं? फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इंडिया के पाकिस्तान की बॉर्डर को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, और इंडिया चाइना की बॉर्डर को बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ये दो मैंने लाइन दो याद कैसे किया? इंडिया पाकिस्तान जब आज़ाद हुए तब क्या बहा? खून बहा, ब्लड बहा। तो ब्लड कौन से कलर का होता है? रेड। तो आई मेमोराइज इट इन रेड क्लिफ। ओके, और मैकमोहन इट लाइक नॉट अ कॉमन नेम, तो मैकमोहन नाम से मैंने याद कर लिया इंडिया एंड चाइना की बॉर्डर का। सो और आप भी कुछ भी सिंपल है तो ऐसे और भी कुछ आपको याद करना हो तो इस तरह से छोटी छोटी ट्रिक बना करके आप कुछ ना कुछ याद कर सकते हैं। So according to this two-nation theory advanced by the Muslim League, India consisted of not one but two people, Hindus and Muslims थे. That is why it demanded Pakistan, a separate country for Muslims बनाया गया. तो कांग्रेस opposed this theory and the demand for Pakistan वो नहीं चाहते थे बने. But several political developments in 1940s, the political competition between the Congress and Muslim League and British rule led to the decision for the creation of Pakistan. तो कोई नहीं चाहता था कि इंडिया पाकिस्तान बने. कुछ लीडर्स, कुछ लोगों की वजह से लाखों लोगों को ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी. कुछ लोगों के सेल्फ ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत से लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. जबकि आपको ये पता है इंडियन मुस्लिम्स और पाकिस्तान में जो मुस्लिम्स रहते हैं उनको अरेबियन कंट्री के मुस्लिम्स रियल मुस्लिम नहीं मानते हैं. एज फार एज आई एम कंसर्न, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, पर जहाँ तक मुझे पता है इंडिया और पाकिस्तान या जो भी हमारे आसपास के जो मुस्लिम्स हैं, दे वर नॉट कंसिडर्ड अदर रियल मुस्लिम्स. रियल मुस्लिम्स कौन हैं? अरेबियन कंट्रीज वाले अपने आप को समझते हैं. गॉट? अब ये प्रोसेस ऑफ पार्टीशन कैसे हुआ? इट वॉज डिसाइडेड दैट what was till then known as India would be divided into two countries. अब ये दो देशों में
कहलाएगा इंडिया एंड पाकिस्तान. Such a division was not very painful but also very difficult to decide and to implement. It was decided to follow the principle of religious majorities. बहुत गंदा ये थिंक था जो भी था ये, कि मेजोरिटी के बेसिस पे और रिलीजन मेजोरिटी के बेसिस पे डिवीज़न हुआ इंडिया का, जो कि सही नहीं था. अगर रिलीजन वाइज नहीं, लैंग्वेज वाइज होता तो शायद इतने फाइट्स नहीं होती, बट रिलीजन बेसिस पे डिवीज़न नहीं होना चाहिए था. दिस बेसिकली मीन्स दैट एरियाज विद द मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी would make up the territory of Pakistan. The rest was to stay with India. तो मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान के पास चले गए और रिमेनिंग पार्ट इंडिया के पास रह गया. तो आइडिया माइट अपीयर सिंपल बट इट इज प्रेजेंटेड all kinds of difficulties. First of all, there was no single belt of Muslim majority. ऐसी कोई बेल्ट थी ही नहीं जो कि ब्रिटिश इंडिया में थी. There were two areas of concentration, one in the west and other in east. There was no way these two parts could be joined. So it was decided that the new country Pakistan will comprise two countries, West and East Pakistan, separated by a long expanse of Indian territory. So ईस्ट और वेस्ट जो पाकिस्तान थे, दोनों में एक बहुत बड़ा गैप था. और बहुत से लोग, एक सिचुएशन ये थी तो जो बहुत से लोग मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, वो जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे, वो इंडिया में ही रहना चाहते थे. एग्जाम्पल, खान अब्दुल गफ्फार खान, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड known as Frontier गांधी जिसे बोला जाता है, was staunchly opposed the two nation theory को. उन्होंने पूरे अगेंस्ट पे थे. खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, राइट. सो थर्ड प्रॉब्लम थी हमारे पास, क्या थी? दैट टू ऑफ the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslims were in majority. जो हमारे पास पंजाब है वो तो बिल्कुल छोटा सा है. Major part of Punjab is in Pakistan. Eventually, it was decided that these two provinces would be bifurcated according to the religious majority at the district or even lower level. The decision could not be made by midnight 14th or 15th अगस्त तक हम डिसीजन नहीं बना पाए. It means that a large number of people did not know on the day of independence whether they were in India or in Pakistan. बहुत बुरी सिचुएशन थी. किसी ने देखी है गदर मूवी? अगर नहीं देखी हो तो एक बार देखना. क्या बुरी सिचुएशन थी. लोगों को मालूम ही नहीं था कि वो कौन सी जगह पे है, वो पाकिस्तान में है कि इंडिया में. बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी, सोच के भी होश उड़ जाते हैं. द पार्टीशन ऑफ दीज टू प्रोविंसेस कॉज द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन. दिस वॉज रिलेटेड टू द फोर्थ एंड द मोस्ट intractable of all the problems of partition. This was the problem of minorities on both sides. यही तो सिचुएशन चल रही है अभी, मेजोरिटी और माइनॉरिटी का. इंडिया में जो मुस्लिम्स हुए वो माइनॉरिटी बन के रह गए, और जो पाकिस्तान में हिंदूज थे वो वहाँ पे माइनॉरिटी बन के रह गए.
तो इस तरह से बुरी सिचुएशन हुई। तो बोथ साइड ऑफ बॉर्डर इस तरह की सिचुएशन थी माइनॉरिटी वाली। Ladakh of Hindus and Sikhs in the areas that were now in Pakistan and equally large number of Muslims on Indian side of Punjab and Bengal, दोनों साइड चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में, दोनों साइड सेम मुस्लिम थे इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे। दे वर टू डिस्कवर दैट दे वर अनडिजायरेबल aliens in their own home, in the land where they and their ancestors had lived for centuries. Oh my God, ये तो बहुत बड़ी सिचुएशन थी कि जैसे कई सालों से, कई सदियों से एंसेस्टर्स रहते आए हैं, अब वो ही देश उनका नहीं रहा, वो ही जगह उनकी नहीं रही, वो ही प्रॉपर्टी उनकी नहीं रही, करोड़ों की प्रॉपर्टी जो उनकी बनाई हुई थी वो सब छोड़ करके उनको इंडिया आना पड़ा। बहुत बुरी सिचुएशन। As soon as it became clear that the country was going to be partitioned, the minorities on both sides became easy targets of attack. No one had quite anticipated the scale of this problem. No one had any plans for handling this. Initially, the people and the political leaders kept hoping that this violence was temporary and would be controlled soon, but very soon the violence went out of control. The minorities on the both sides of the border left with no option except to leave their homes, often at a few hours' notice. तो भाई जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो मुस्लिम्स इंडिया में थे, यहाँ पे हिंदूज उनको मार रहे थे, और जो हिंदूज पाकिस्तान में थे उनको मुस्लिम्स मार रहे थे। बहुत बुरी सिचुएशन हुई थी। तो ऐसी सिचुएशन लोगों ने अंदाज़ा भी नहीं लगाई थी कि ऐसी सिचुएशन पैदा भी हो सकती है क्या। और उसी वक्त जब ये सब कुछ चल रहा था, महात्मा गांधी जी कहाँ चले गए थे? ही वेंट, आई थिंक, कोलकाता। एम आई राइट? बताइएगा चेक करके, महात्मा गांधी जी उस वक्त कहाँ चले गए थे? ही वेंट कोलकाता। तो सिचुएशन कंट्रोल होने की हम सोच रहे थे हो जाएगी, पर नहीं हो पाई। सिचुएशन तो और बस्ट हो गई, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो गई थी। अब कॉन्सिक्वेंसेस इस पार्टीशन के क्या निकल के आए? द ईयर ऑफ 1947, one of the largest, most abrupt and planned tragic transfer of population that human history has known. यार 5 to 7 lakh people died. जितने लोग हमारे देश की आज़ादी में से आज़ादी के लिए मरे, एग्जाम्पल 1857 से लेकर के 1947 तक लगभग 5 लाख लोग मरे नहीं, शहीद हुए देश के लिए। भगत सिंह जी जैसे, ऐसे बहुत से 5 लाख, अकेले भगत सिंह नहीं, 5 लाख लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, तब जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। और आज उस देश के आज़ादी की तमन्ना हमने की, उस देश की आज़ादी की तमन्ना हमने की, लेकिन क्या देखते हैं कि देश आज़ाद हुआ तो सब लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, और 5 से 7 लाख लोग मर गए। डिस्गस्टिंग, बहुत बुरी सिचुएशन। केवल कुछ चंद लोगों की वजह से इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। There were killings and atrocities on both sides of the border. In the name of religion, people of the community ruthlessly killed and maimed people of the other community. Cities like Lahore, ये ट्रेन देखिए कैसे लोग जा रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई कट रहा है। बहुत बुरी सिचुएशन थी। ट्रेन लाइक लाहौर,
अमृतसर एंड कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स बन गए थे. Muslims would avoid going into an area where mainly Hindus or Sikhs lived. Similarly, Hindus भी नहीं जाते थे जहाँ पे हिंदू एंड सिख्स. कहाँ नहीं जाते थे? जहाँ पे मुस्लिम्स रहते थे. Forced to abandon their homes and move across borders. People went through immense suffering. सबको बहुत बुरी सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा था. Minorities on both sides of the border fled their home and often secured temporary shelter in refugee camps. तो जो भी माइनॉरिटीज़ थे, इंडिया में मुस्लिम्स थे, पाकिस्तान में हिंदूज थे, उन सबको रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ रहा था. They often found unhelpful local administration and police in what was still recently their own country. They traveled to the other side of new border by all sort of means, often by foot. Even during this journey, they were often attacked, killed or raped. Thousands of women were abducted on both sides of the border. They were made to convert to the religion of the into marriage. Forcefully शादियाँ कराई गई, killed कर दिए गए, rape कर दिए गए. Imagination करके बहुत बुरी सिचुएशन लगती है, होश उड़ जाता है. So in many cases, women were killed by their own family members to preserve their family honor. को बचाने के लिए खुद के ही परिवार वालों ने अपने अपनी घर में फीमेल जी थी उन सबको मार दिया. Many children were separated from their parents. Those who did manage to cross the border found that they had no home. घर नहीं थे उनके पास. For lakhs of these refugees, the country's freedom meant life in refugee camps or months and sometimes for years. तो जिंदगी गुजारनी पड़ी कैंप्स के अंदर ही. अभी भी बहुत से थाउजेंड्स ऑफ पीपल है जो रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, जिनको जगह नहीं मिल पा रही है रहने की, उनको सिटीजनशिप नहीं मिल पा रही है. तो यही तो मुद्दा चल रहा है अभी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का, कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज से आए हुए हैं माइनॉरिटीज़ को सिटीजनशिप दे रहे हैं. और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए. सालों से इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग, सालों से, कि हमें सिटीजनशिप मिलेगी. पर विपक्ष, अपोजिशन पार्टी है, वो बोल रहे हैं कि केवल माइनॉरिटीज़ को क्यों मिले भाई, वहाँ के मुस्लिम्स को भी मिलनी चाहिए. पर मुझे बताइए, जिस बेसिस पे इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ, उनके लिए तो ऑलरेडी सेपरेट स्टेट है, उनके तो ऑलरेडी सेपरेट कंट्री बनाई हुई है, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. क्यों वहाँ की मुस्लिम्स को हम इंडिया में इंक्लूड करेंगे? हाँ, अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो एज ए टेरिटरी हमारे इंडिया में शामिल हो सकते हैं. पर वाई वी आर गोइंग टू इंक्लूड ऑल मुस्लिम्स इन इंडिया? हम किसको लेंगे? CAA फॉर व्हाट? CAA कि हम वहाँ उनके माइनॉरिटी को हम इंडिया में सिटीजनशिप देंगे, इसलिए CAA आया है. तो राइटर्स, पोएट्स एंड फिल्म मेकर्स इन इंडिया, सब लोगों ने कुछ ना कुछ इन किलिंग्स को लेकर के बहुत सारी फिल्म्स बनाई, नॉवेल्स लिखे गए, इस वॉयलेंस के स्टोरीज बनाई गई, फिल्म्स बनाई गई. रिकाउंटिंग द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, दे हैव ऑफन यूज्ड द फ्रेज दैट द सर्वाइवर्स देमसेल्व्स यूज्ड टू डिस्क्राइब
पार्टीशन एज अ डिवीजन ऑफ हार्ट्स, दिल के टुकड़े हो गए, बिल्कुल दिल के टुकड़े हुए। भारत को दो हिस्सों में बांटने की पूरी पूरी कोशिश की गई थी। फिर भी पाकिस्तान और बांग्लादेश कुछ ही पोर्शन हमारे देश से बाहर गया। पार्टीशन वॉज नॉट merely a division of properties, liabilities, and assets, or a political division of the country and the administrative apparatus. What also got divided were the financial assets divided गई, and things like tables, chairs, typewriters, paper clips, books, and also musical instruments of the police band. The employees of the government and the railways were also divided. Above all, it was violent separation of communities who had hitherto lived as neighbors. It is estimated, हमने सब कुछ बांट दिया, एक एक चीज़ बांट दी गई, और it is estimated that the partition forced about 80 lakh people to migrate across the new border. Between 5 to 10 lakh people were killed. I was saying 5 to 7, it was 5 to 10 lakh people were killed in partition related violence में, जो कि बहुत बुरी सिचुएशन थी, होना नहीं चाहिए था। So beyond the administrative concerns and the financial strains, however, the partition posed another deeper issue. Leaders of the Indian national struggle did not believe in the two-nation theory, and yet partition on religious basis had taken place. Did that make India a Hindu nation automatically? So पार्टीशन जो हुआ इंडिया और पाकिस्तान, वो किस बेसिस पे हुआ था कि इंडियंस में हिंदूज जो हैं वो यहाँ रह जाएंगे और मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान चले जाएंगे। तो इससे, इस सिचुएशन से क्या इंडिया हिंदू कंट्री बनने की ओर था? जी नहीं, इंडिया ने स्टार्टिंग से ही यही डिक्लेयर किया कि इंडिया क्या है, सेक्युलर कंट्री है। इवन आफ्टर लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स टू द न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान, द मुस्लिम्स पॉपुलेशन इन इंडिया अकाउंटेड फॉर 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इंडिया में जो मुस्लिम थे वो कितनी थी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की? 12% 1951 में। सो हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट इट्स मुस्लिम्स, citizens and other minorities? The इंडिया के जो मुस्लिम थे या इंडियन मुस्लिम सिटीजन्स जो थे उनको माइनॉरिटीज़ डिक्लेयर कर दिया जाए, जबकि सिख्स, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जूस तो बहुत छोटे, बहुत कम उनकी पॉपुलेशन है। जब उनकी कम पॉपुलेशन है तो उनको माइनॉरिटी डिक्लेयर करेंगे कि मुस्लिम्स को डिक्लेयर करेंगे? जबकि मुस्लिम्स कितने परसेंट लोग हैं? दे आर 12% इंडिया में इन 1951। तो पार्टीशन हैड ऑलरेडी क्रिएटेड सीवियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज। तो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे दोनों कम्युनिटीज़ में कि हम माइनॉरिटी, मुस्लिम बोलते कि हमें माइनॉरिटी डिक्लेयर करना चाहिए और हिंदूज बोलते कि इन्हें माइनॉरिटी डिक्लेयर कैसे करें। तो ये सिचुएशन चलती रही, फिर फाइनली उनको माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया गया। तो देयर वर कॉम्पिटिंग political interest behind these conflicts. The Muslim League was formed to protect the interests of the Muslims in colonial India में Muslim League बना दिया गया था। It was in forefront of the demand for a separate Muslim nation के लिए डिमांड आया। Similarly, there were organizations which were trying to organize the Hindus in order to टर्न इंडिया इनटू हिंदू नेशन के लिए भी कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाह रहे थे कि वो हिंदू नेशन बने। बट मोस्ट लीडर जो थे वो नेशनल मूवमेंट बिलीव दैट इंडिया ट्रीट पर्सन्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, कि सभी लोगों को एक ही
पलड़े में तोला जाए, या सभी रिलीजन को एक ही नज़रिए से देखा जाए और इंडिया में सब लोग मिलजुल के रहे, इंडिया एक सेकुलर कंट्री बने। ये सब लोग यही चाह रहे थे कि इंडिया शुड बिकम अ सेकुलर कंट्री। किसी बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे इंडिया डिवाइड ना हो। फिर भी इंडिया डिवाइड हुआ इक्वली, एंड दैट इंडिया शुड नॉट बी अ कंट्री दैट गेव सुपीरियर status to adherents of one faith and inferior to those who practice another religion। कि एक रिलीजन को प्रायोरिटी दी जाए और दूसरे रिलीजन को प्रायोरिटी ना दी जाए। ऑल सिटीजन्स वुड बी इक्वल irrespective of religious affiliation। being religious or believer would not be a test of citizenship। they cherished therefore the ideals of a secular nation। the ideal was enshrined in the Indian Constitution। बिल्कुल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular। तो सेकुलर वर्ड साफ लिखा, हम कौन हैं, वी आर सेकुलर कंट्री। और सेकुलर कंट्री वही कंट्री होती है जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को तवज्जो ना दी जाए, वहाँ पे सब रिलीजन टॉप प्रायोरिटी पे हो, एक रिलीजन को टॉप प्रायोरिटी नहीं दी जाए। या एक दूसरी लैंग्वेज में कहें कि किसी उस देश को सेकुलर कंट्री कहेंगे जिस देश का कोई रिलीजन ना हो, तो उसी देश को हम सेकुलर कंट्री कहेंगे। तो इंडिया इज़ नॉट अ हिंदू कंट्री, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, एंड नेपाल जो है दैट कंट्री इज़ अ हिंदू कंट्री। ओके, सो ये हमारा पूरा आज का वन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, वो टॉपिक हम करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सबको अच्छा लगा होगा पढ़ करके, सुन करके। प्लस मैं चाहूँगा जो क्वेश्चंस मैं भेजूँ फटाफट से करके मुझे भेजिएगा, और अच्छे से पढ़ो, रिवाइज़ करो, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। टेक केयर। बाय।